અને હવે વાત કરીશું ઇઝરાયલ અને પેલેસ્ટાઇન વચ્ચેના યુદ્ધ વિશે। ઇઝરાયલ અને હમાસ વચ્ચેના યુદ્ધનો આજે 5મો દિવસ છે। શનિવારથી શરૂ થયેલું યુદ્ધ આજે પણ ચાલી રહ્યું છે। સતત બોમ્બ વર્ષાના કારણે શહેરો કબ્રસ્તાનમાં ફેરવાઈ ગયા છે। શહેરોમાં સતત થતા હુમલાના કારણે સાયરન વાગી રહી છે, અવાજો સતત સંભળાઈ રહ્યા છે। લોકો માટે જીવન મુશ્કેલ બની ગયું છે। આ વચ્ચે ભારત, અમેરિકા સહિતના દેશો ઇઝરાયલનો સાથ આપી રહ્યા છે। અમેરિકાએ ઇઝરાયલને શસ્ત્ર આપવા માટે તૈયારી બતાવી। આ હુમલાઓમાં ગાઝા પટ્ટી અને તેની આસપાસનો ઇઝરાયલનો વિસ્તાર સતત પ્રભાવિત થઈ રહ્યો છે। યુદ્ધમાં અત્યાર સુધીમાં પેલેસ્ટાઇનમાં 900 લોકોએ જીવ ગુમાવ્યા છે, જ્યારે 4500થી વધુ લોકો ઘાયલ થયા છે, તો ઇઝરાયલમાં 1200થી વધુ લોકોના મૃત્યુ થયા છે, જ્યારે 2800 લોકો ઘાયલ થયા છે। ઇઝરાયલમાં ગાઝા પટ્ટી પાસે એક મોટો રિલીફ કેમ્પ બનાવવામાં આવ્યો છે, જ્યાં સતત એમ્બ્યુલન્સ તૈનાત કરવામાં આવી રહી છે। બોર્ડર વિસ્તારમાં ભોજન, પાણી અને દવાઓ અહીંથી મોકલવામાં આવી રહી છે। દરેક લોકોના હાથમાં હથિયાર જોવા મળી રહ્યા છે। गजा पट्टी के बेहद नजदीक इजराइल ने एक बहुत बड़ा रिलीफ कैंप यहां पर स्थापित किया है और इस रिलीफ कैंप से उन तमाम इजरायली सैनिकों को रसद और सहायता मुहैया कराई जा रही है जो बॉर्डर पर इस वक्त लड़ाई लड़ रहे हैं, जो हमास के आतंकियों के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे हैं। और यहां पर लगातार वो एम्बुलेंसेस खड़ी हैं। अगर कोई इस लड़ाई में घायल हो रहा है या किसी को कोई नुकसान हो रहा है, तुरंत ये एम्बुलेंस बॉर्डर इलाके में जा रही है गजा पट्टी के, जहां पर उन्हें रेस्क्यू कर रही हैं और दवाइयां पहुंचा रही हैं। साथ ही और भी तमाम जो उपकरण है वो यहाँ से पहुंचाए जा रहे हैं। एक ये पूरा खेत में, एक फील्ड के इस मैदान में आप देखिए किस तरह से पूरा यहाँ पर ये स्थापित किया गया है। कंट्रोल रूम आप इसे कह सकते हैं, रिलीफ कैंप यहाँ पर बनाया गया है। ये तस्वीरें मैं आपको दिखाता हूँ। लगातार यहाँ पर एक किट बनाई जा रही है और इस किट में बहुत सारी चीज़ें लगातार रखी जा रही हैं, जो फर्स्ट एड की चीज़ें हैं, ताकि तुरंत उन्हें सहायता मुहैया कराई जा सके। प्रेसिडेंट है, मैं उनसे बातचीत करता हूँ। सर प्लीज़, या व्हाट्स योर नेम सर? My name is Eli Beer, Eli Beer. Eli Beer, sir, please come this side. How you are helping the soldiers who are fighting for the Israel? We're helping the IDF. We're helping all the civilians here with medical supplies, with humanitarian supplies, people who ran from work, from home to fight in the battle here. This is what's going on in Israel now, is like happened ISIS, what ISIS did 10 years ago in Iraq, in Syria. This is what's happening here in Israel. We have Hamas, who is ISIS. There is no difference between Hamas and ISIS. The same exact thing. Taking babies and shooting babies in the head, slaughtering heads of people. We saw old people, like 90 years old, that was shot by terrorists. Babies. 9 years old children. 9 months old babies. 9 men. 90-year-old men. 90-year-old women who were shot. Over 1,000 people were died, murdered by terrorists. What we do in Hatzalah, in United Hatzalah, is to help the medical aspect, to make sure if someone is sick, injured, we take care of them right away. We have all the ambulances. We have all the humanitarian work. You could see in the back here, they're giving out boxes of equipment and everything. So this is what we do here. And you are also carrying the weapon? For protection, yes. Yes. तो देखिए यहाँ पे दवाइयाँ, खाना, पानी लगातार सोल्जर्स को उपलब्ध करा रहे हैं। यहाँ पर एक पूरा रिलीफ कैंप लगाया गया है। ये बता रहे हैं किस तरह से लोगों की मदद की जा रही है। एक ये बड़ा रिलीफ कैंप यहाँ पर आप देख पाएंगे। और अगर हम आगे बढ़ेंगे, एम्बुलेंस यहाँ पर बहुत ज़्यादा तैनात की गई हैं ताकि किसी भी आपात स्थिति में लोगों की मदद की जा सके। तो आप देख सकते हैं किस तरह से दोबारा किसी को रेस्क्यू करने के लिए निकल रहे हैं। कुछ इस तरह से इजराइल में पूरा रिलीफ कैंप स्थापित कर दिया गया है लोगों की मदद के लिए। और लगातार ये लोग यहाँ पर सहायता पहुंचा रहे हैं इजरायली सैनिकों को, इजरायली नागरिकों को जो गजा स्ट्रिप में के आसपास के हिस्सों में फंसे हुए हैं, उन्हें ये यहाँ पर लगातार सहायता मुहैया करा रहे हैं। ग्राउंड जीरो से जी न्यूज़ आपको गजा पट्टी के बेहद नज़दीक से रिपोर्ट दिखा रहा है। कुल मिलाकर यहाँ पर हालात बेहद ज़्यादा बिगड़े हुए हैं। लोग एक दूसरे की मदद कर रहे हैं। हर इजरायली नागरिक इस युद्ध के क्षण में इजराइल की रक्षा के लिए अपने देश के साथ खड़ा है। कैमरामैन जयदीप के साथ विशाल पांडे, जी मीडिया,
ઇઝરાયલ. ઇઝરાયેલના નાગરિકો યુદ્ધના સમયમાં સતત દેશની સેવા કરી રહ્યા છે. શાળાએ જતા બાળકો પણ રિલીફ કેમ્પમાં કામ કરી રહ્યા છે. બોર્ડર પર તૈનાત જવાનો માટે ભોજન અહીંથી પેક કરવામાં આવે છે. વિદ્યાર્થીઓ અહીં સ્વયંસેવક તરીકે કામગીરી કરી રહ્યા છે અને આશા રાખી રહ્યા છે કે તેમને ફંડિંગ મળે તો વધારે સારું કામ તેઓ કરી શકે. इजराइल की जनता इजराइल की सेना की मदद के लिए इस वक्त सड़कों पर उतर गई है. रिलीफ कैंप में इजराइल की जनता वॉलंटियर तौर पर यहां इजरायली सेना की मदद के लिए देखिए तमाम फूड आइटम्स को पैक कर रही है, बॉर्डर पर उन तक पहुंचा रही है. जो आम नागरिक हैं उनकी मदद के लिए ये लोग यहां पर काम कर रहे हैं. मैं इनमें से कुछ लोगों से बातचीत करता हूं. व्हाट्स योर नेम? My name is Tal. I'm from Kibbutz Negba. And you are helping for the soldiers of Israel. You are packing foods. We're packing foods, medicine, everything that they need. People come to us and call us in many different ways. They just come here with, they desperate to water and food and medical assistance, and they just come here and pick up the boxes we are preparing from them. Also soldiers, and they just take everything they need. Everybody here is from the kibbutzes and villages that in the area, and some of them are teenagers. What is the situation right now near the Gaza Strip and the Estrad and the Ashkelon? Are still the terrorists are roaming here? Yeah, there are still. We don't know how much by the quantity, but there are some terrorists. Around the Gaza Strip villages, and there are a few places that our soldiers are still fighting with them. We hope for the best, and this volunteer is helping us to keep our insanity, you know. Thank you so much. Also, I want to say that we are accepting donations for the food, and everything can come here, and then we can pack. देखिए यहाँ पर किस तरह से इजराइल की जनता सड़कों पर गाजा स्ट्रिप के बेहद नज़दीक इस तरह से कैंप लगाकर लोगों की मदद कर रही है. फूड आइटम्स पहुँचा रही है, मेडिकल के सामान पहुँचा रही है, दवाइयाँ पहुँचा रही है. और इसमें आप देखिए बच्चे आपको ज़्यादा दिखाई देंगे. ये सभी लोग अपने घरों से निकलकर, ये इजराइल के बारे में कहा जाता था, आज हमने देखा है कि कैसे इजराइल के ये लोग अपने देश के लिए इस वक्त जब संकट है सब एकजुट होकर सड़कों पर उतरे हुए हैं. देश की सेना की मदद के लिए छोटे छोटे बच्चे यहाँ पर आपको दिखाई पड़ेंगे. फूड आइटम्स लगातार पैक कर रहे हैं. ये इजराइल की सबसे बड़ी ताकत है जो कि शायद अन्य देशों को भी सीखना चाहिए कि कैसे ये अपने देश की मदद के लिए आप सड़कों पर उतरकर बॉर्डर के बेहद नजदीक आकर वॉलंटियर वर्क कर रहे हैं. कैमरामैन एस जयदीप के साथ विशाल पांडे, जी मीडिया, इजराइल. તો હમાસ અને ઇઝરાયલના યુદ્ધમાં સૌથી વધુ અસરગ્રસ્ત વિસ્તાર હોય તે છે ગાઝા પટ્ટી. ત્યારે ઝી મીડિયા તમને ગાઝા પટ્ટીની નજીકથી આંખે દેખ્યા અહેવાલ બતાવી રહ્યું છે. ઇઝરાયલનું સેદ્રોસ શહેર ગાઝા પટ્ટીથી 1 કિલોમીટર દૂર છે અને અહીં જ સૌથી પહેલો હુમલો હમાસ દ્વારા કરવામાં આવ્યો હતો. સેદ્રોસ શહેર હાલ સૈન્ય છાવણીમાં ફેરવાયેલું છે. હમાસને જવાબ આપવા માટે ઇઝરાયલની સેનાએ કેવી રીતે તૈયારીઓ કરી છે, જુઓ આ ખાસ ગ્રાઉન્ડ ઝીરો રિપોર્ટમાં. जी न्यूज की टीम इस वक्त गजा पट्टी से मात्र 1 किलोमीटर की दूरी पर मौजूद है और ये सैद्रोस शहर है इजराइल का, जहां पर सबसे पहले हमास ने आतंकी हमला किया था. अब यहां पर जो इजराइल के डिफेंस फोर्सेस हैं उन्होंने इस पूरे इलाके को छावनी में तब्दील कर दिया है. इजरायली सेना के टैंक यहां पर देखे जा सकते हैं, उनके घातक हथियार यहां पर देखे जा सकते हैं. वो यहां पर पूरी तरह से यहां इकट्ठा किए गए हैं ताकि वक्त जैसे ही उन्हें आदेश हो तुरंत यहां से वो हमला करें, टारगेट पॉइंट पर हमला करें, क्योंकि जो हमास के आतंकी हैं वो गजा पट्टी में भी छिपे हो सकते हैं और इसके आसपास के इलाकों में भी. तो देखिए एक ये बड़ी तैयारी यहां पर इजराइल की सेना की तरफ से की गई है, जहां पर ये पूरी तरह से यहां आप टैंकों की मौजूदगी दे सकते हैं. टैंकों को यहां तैनात कर दिया गया है, उनकी स्थिति को आप देख सकते हैं. और साथ ही ये जो तस्वीरें यहां पर आप देख रहे हैं ये इस चीज को बताने के लिए काफी है कि इजराइल किस कदर पूरी तरह से यहां तैयार है हमास के आतंकी ठिकानों पर हमला करने के लिए और बदला लेने के लिए, क्योंकि इजराइल
इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू बार-बार कह रहे हैं कि इजराइल ये जंग जीतेगा और हमास को एक सबक सिखाएगा, और ये उसी की तैयारी हमने आपको दिखाई। किस तरह से गजा पट्टी से नजदीक जो इजराइल का बॉर्डर है वहां पर बड़ी संख्या में इजरायली फोर्स की तैनाती बढ़ा दी गई है, हथियारों की तैनाती बढ़ा दी गई है। यहां पर आप टैंक की तैनाती देख सकते हैं, और साथ ही मैं लगातार यहां धमाकों की आवाज सुन रहा हूं। जो आयरन डोम है इजराइल का, वो लगातार यहां हमास के रॉकेट को इंटरसेप्ट कर रहा है और उन्हें बीच आसमान में ही खत्म कर दे रहा है, क्योंकि लगातार हमास की तरफ से भी रॉकेट से हमले किए जा रहे हैं। और यहां पर ये जो पूरा हाईवे है जहां पर मैं मौजूद हूं, दक्षिणी हिस्सा है इजराइल का, यहां टैंकों की तैनाती कर दी गई है और लगातार इसकी संख्या भी बढ़ाई जा रही है, क्योंकि इजराइल पूरी तरह से बदला लेने के लिए तैयार है। एक बार फिर से मैं आपको क्लोज तस्वीरें दिखाता हूं। जी न्यूज पर ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें देख रहे हैं। इजराइल के टैंक्स पूरे इस फील्ड में, एक ये खेत है उसके बगल में इजराइल ने अपने टैंकों की तैनाती कर दी है, क्योंकि बेहद नजदीक है। इसके तुरंत बाद गजा पट्टी का वो इलाका शुरू हो जाता है जहां पर बाढ़ लगे हुए, जिन बाढ़ और जिन नुकीले तारों को हमास के आतंकियों ने बुलडोजर से ध्वस्त कर दिया था, काट दिया था, उस इलाके से ये पूरा इलाका सटा हुआ है जहां पर जी न्यूज की टीम इस वक्त मौजूद है। और इजराइल की जो डिफेंस फोर्सेज है वो यहां से लगातार मोर्चा संभाले हुए है ताकि हमास के आतंकियों को सबक सिखाया जा सके। ग्राउंड जीरो पर पहुंचने वाला जी न्यूज पहला चैनल है और हम आपको ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें वॉर जोन से सीधे दिखा रहे हैं। कैमरामैन जयदीप के साथ विशाल पांडे, जी मीडिया, इजराइल। ઇઝરાયલ અને હમાસના યુદ્ધથી સ્થાનિકોમાં ભયનો માહોલ છવાયેલો છે। ઇઝરાયલમાં રહેતા ભારતીયોને પણ યુદ્ધની અસર થઈ છે। મૂળ ભારતીય પરંતુ ઇઝરાયલમાં વસેલા લોકોને તેમની સેના પર પૂરો ભરોસો છે। મૂળ ભારતીય લોકોએ પીએમ મોદીનો આભાર પણ માન્યો છે। પીએમ મોદીએ અમારા માટે જે કંઈ પણ કર્યું છે તે માટે પીએમનો આભાર, તે પ્રકારનું સ્થાનિકો દ્વારા કહેવામાં આવ્યું છે। मिसाइल आ गए तो अश्केलोन पे, तो यहाँ एक मिसाइल पड़ गया था और ये सब गाड़ी का आग लगाया। यहाँ के ऑल बिल्डिंग का इलेक्ट्रिक गया। हम यहाँ रहते हैं, वहाँ से सब हमारे खिड़की दरवाजे सब टूट गए। हमें लगता है all the time हम खतरे में, but we believe our army, we trust our army that they are strong and we are safe here. It's our home and we can go anywhere. We are very thankful to Modi that he is supporting us, Israel, and he is doing a lot of things for us, for Israel, and for our community in India. And we think that the things that he is doing for us, it's very strong. We are very strong for his words, and I think the Indian community supporting India. તો આ હતા અત્યાર સુધીના સમાચારો। રાજ્ય સહિત દેશ અને દુનિયાની તમામ